हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं पहले आपको डिक्टेशन दे रहा हूँ लीगल मैटर की, जो एक्सरसाइज नंबर 32 है। 31 की मैंने पहले दी थी, और इस डिक्टेशन के बाद में मैंने आउटलाइंस ड्रॉ करके बताई हैं जो भी इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं उसमें से, और मैंने कोशिश की है कि मैं जहाँ हो सका मैंने समझाया भी है आपको और उसका मीनिंग भी बताया है कि कैसे आउटलाइंस को लिखना है। तो पहले आप डिक्टेशन लिखिए, ट्रांसक्राइब कीजिए और आउटलाइंस को आप सबसे बाद में देखिएगा। आपको डिफ़िकल्टी ज़रूर आएंगी लिखने में, क्योंकि लीगल डिक्टेशन की अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है या बीच में प्रॉपर नाउन आ जाते हैं तो मुश्किल आएगी, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप इनको आउटलाइंस को देखेंगे बाद में और उनको समझने की कोशिश करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, तो प्रैक्टिस करने से चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाती हैं। हो सके तो जो भी वर्ड आपको डिफ़िकल्ट लगे फिर भी आप उसका मीनिंग देखिए डिक्शनरी में से। जितना आप मीनिंग देखेंगे, जितना आपको क्लैरिटी आएगी, उतने आपको चीज़ें आस्ता आस्ता आसान लगने लगेंगी। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है और अब मैं पहले डिक्टेशन शुरू करता हूँ। प्लीज़ गेट रेडी फॉर ए डिक्टेशन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 32 फ्रॉम द लीगल मटेरियल। 5 seconds. Start. We note that both FIRs were clubbed for trial and charge were framed. Stop. Manju was charged for having committed the offence punishable. Stop. All of them except Manju were charged for having committed the offence punishable. Stop. Gurcharan and his parents were charged for the offences punishable. Stop. Charge under section 506/34 IPC was framed against Bal Saroop, Chandi, Gurucharan, Arun and Geeta Devi. Stop. Kamlesh and Gurcharan were married on 22/4/1990. Unfortunately, the marriage turned turbulent after about 3-4 years and reached a crescendo in the year 1997 when Kamlesh addressed a communication to the crime branch, women cell, Nanakpura, informing that her husband, her parents-in-law, her devar Arun, his wife Geeta, her nanad Shrimati Nirmala used to harass her for dowry and was compelled to leave her matrimonial house and live with her parents. Surprisingly, in her further complaint, she started inculpating Manju, the wife of her deceased brother, who was residing with her, that is, Manju's father, as an instigator. We note that Manju had lodged a complaint with the police for dowry harassment, in which she had named her husband, her parents-in-law, and her sister-in-law, Kamlesh, alleging that Kamlesh used to instigate her brother, that is Manju's husband, to harass Manju, to compel Manju's parents to give dowry. On a complaint filed by Kamlesh, P.S. Bhajanpura, for the offences punishable was registered against Chandi, Geeta and Nirmala. Stop. With the intervention of family friends, the marital discord between husband and wife, that is Kamlesh and Gurcharan, was resolved, who had left her matrimonial house turned with an assurance that she would not be troubled. Unfortunately, the return journey of Kamlesh
to her matrimonial house proved dangerous for her. Stop. On 13/7/1999, Kamlesh suffered burn injuries in her matrimonial house and she was taken to GTB hospital by Saraswati, the wife of the elder brother of Gurcharan. It be noted that Saraswati and her husband reside in the neighborhood where the matrimonial house of Kamlesh was situated. Stop. The dead body of Kamlesh was sent to the mortuary of Maulana Azad Medical College, where Dr. Yogender Bansal conducted the post-mortem and prepared the report, opining that the death was due to burn shock consequent to burn injuries. Stop. He noted that no smell of kerosene was present over the body. Stop. He preserved the scalp hair of the deceased and handed over the same to the investigating officer so that the same could be subjected to forensic examination pertaining to the presence of any inflammable material on the scalp hair. Stop. Matrimonial house of the deceased is divided into 6 near equal rectangular portions. Stop. Okay students, अब हम देखते हैं आउटलाइंस. इसमें जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लगी मैंने यहाँ पर ली हैं, और जैसा कि आपने नोटिस किया होगा इसमें बहुत से नाम आए हैं. और नाम के बारे में मैं ये कहूँगा कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ थोड़े एफर्ट करने पड़ेंगे. शुरू में हो सकता है मुश्किल हर चीज़ लगती है शुरू में, लेकिन जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे हमारे लिए चीज़ें आसान होती हैं. तो ऐसा नहीं है, आपको अगर हुक बनानी आती हैं प्रॉपर, आपको अगर कॉन्सोनेंट आते हैं तो आप आउटलाइन बना पाएंगे कोशिश करके. तो यहाँ मैं आपको समझाता हूँ. आप देखिए पहला वर्ड जो है वो है मंजू. मंजू को मैंने MNJ करके लिखा है और उसके नीचे मैंने डबल टिक लगाया है. जैसा मैं पहले कहता हूँ, जब डबल टिक लगाते हैं तो वो ये सिग्निफाई करता है कि ये स्पेशल वर्ड है. चाहे आप इसको सर्कल कर लीजिए, चाहे आप डबल टिक लगाइए. डबल टिक का नॉर्मल मीनिंग ये होता है कि उसका जो है फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, और क्योंकि प्रॉपर नाउन है, नाम है, तो ऑटोमेटिकली होगा. लेकिन जो मैं टिक लगाता हूँ वो सिर्फ सिग्निफाई करने के लिए कि ये नॉर्मल वर्ड नहीं है, ये प्रॉपर नाउन भी है. और हो सकता है आप अगर लैटिन वर्ड के नीचे भी मैं लगाता हूँ ताकि मुझे ये पता लगे कि ये इंग्लिश का वर्ड नहीं है. तो आप देखिए एक एक वर्ड को ध्यान से. ये मंजू में ऊ लगाने तो आपकी मर्जी है, लेकिन जब आपने डबल टिक लगा दिया MNJ के नीचे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि ये MNJ मंजू बनता है. ठीक है, हमें नाम तो मालूम ही है. उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है कमिटेड. कमिटेड में टिड देखिए, टी को हाफ करके, और कम इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कमिटेड. छोटी, बहुत छोटी आउटलाइन है और बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट वर्ड है पनिशेबल. पनिश के साथ BL लगाना है. उसके बाद नाम आया गुरचरण. अब गुरचरण को आप, मंजू को भी आप चाहे तो इंग्लिश में लिख सकते हो, ऐसा नहीं है, जैसा भी आप चाहो. गुरचरण को भी आप इंग्लिश में लिख सकते हो. और अगर आउटलाइन भी बनाना चाहो तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है. देखो GR करके और CHR किया और N कर दिया, गुरचरण. और उसके बाद है अंडर सेक्शन, वो आप कंबाइन कर सकते हो, दैट्स नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं. IPC को भी आप चाहें तो छोटा लिख दीजिए, लेकिन जब आप ट्रांसक्राइब करेंगे तो नेचुरली हमने इसको कैपिटल में लिखना है. और विदाउट इसमें स्टॉप डाले लिखिए, IPC इकट्ठा करके लिख दीजिए. और दोनों ठीक होंगे, अगर आप डॉट वाला करेंगे तो भी ठीक होगा, ऐसा नहीं है. लेकिन नॉर्मली IPC इकट्ठा लिखा जाता है. उसके बाद फिर एक नाम आया है, मैं एक मिनट देखता हूँ. ये नाम जो है, ये जैसे आपने देखा होगा, ये है बाल स्वरूप. अब बाल स्वरूप को मैंने बाल करके और नीचे इंडिकेशन दे दिया. स्वरूप में भी स्वरूप कर दिया मैंने, W कर दिया, लेकिन आप स्वरूप भी लिख सकते हैं. और स्वरूप में
आप स्पेलिंग अगर गलत भी कर देंगे प्रॉपर नाउन में तो वो मिस्टेक नहीं मानी जाएगी। उसके बाद है चांदी। हाँ, यहाँ पर डी के साथ ई लगाना चाहिए था, नहीं तो चांद पढ़ेंगे या चंदा पढ़ लेंगे। इसमें डॉट लगा दीजिएगा, मैंने लगाया नहीं बाय द वे। उसके बाद है अरुण। अरुण में भी मैंने नीचे आर एन करके दे दिया है। गीता देवी आया है तो गीता देवी भी मैंने देखिए दे दिया है। तो ये सिग्निफाई करते हैं, अगर आप नहीं लगाएंगे तो इसको कुछ और पढ़ लेंगे इंग्लिश का वर्ड, लेकिन जब ये लगा होगा तो आपको पता है ये मैंने किसी पर्पज से लगाया है। तो गीता देवी है। गीता देवी के बाद देखिए कमलेश। कमलेश में हमने KMLSH कर दिया है, तो कमलेश। ये भी मुश्किल नहीं है अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो। ऐसे ही छोटे छोटे वर्ड जब आप बनाएंगे तो आपको थोड़ी थोड़ी हैबिट पड़ेगी और आपको चीज़ें ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेंगी। उसके बाद है टर्बुलेंट। टर्बुलेंट देखिए, टर्बुलेंट भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और टर्बुलेंट के बाद है वर्ड क्रिसेंडो। क्रिसेंडो देख रहे हैं, आपने देखा होगा, आपने आया था CRESCENDO, क्रिसेंडो। तो क्रिसेंडो है, ये इसकी आउटलाइन मैंने बनाई है। उसके बाद जो है नानकपुरा। अब देखिए नानकपुरा में आप चाहें तो इंग्लिश में लिख सकते हैं और NNK करके भी नानकपुरा भी लिखेंगे तो भी आप पढ़ पाएंगे। आपको पता लगेगा कि ये, हाँ, मैंने डबल टिक लगाया, नॉर्मल वर्ड, इंग्लिश का वर्ड नहीं है। और आप जैसे NNK PR देखेंगे तो पता लग जाएगा। नेक्स्ट है हस्बैंड, नॉर्मल आउटलाइन है। पेरेंट्स इन लॉ। अब पेरेंट्स इन लॉ देख रहे हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं और मैंने नेक्स्ट आउटलाइन में उनको कंबाइन भी कर दिया। आप चाहें तो उनको कंबाइन भी कर सकते हैं, वो आपके अपने ऊपर है। और उसके बाद वर्ड आया देवर। देवर अरुण। अब देवर देखिए DVR करके मैंने नीचे वो लगा दिया, तो मैं कुछ अंदाज़ा लगा लूँगा देवर अरुण कि ये इंग्लिश का वर्ड नहीं है। देवर अरुण आप ऐसे लिख सकते हैं। और अगर आपको लगता है आप इंग्लिश में लिख सकते हैं या हिंदी में, आई लीव इट टू यू। हाँ, पेरेंट्स इन लॉ अबव जो है उसको हाइफन आता है बीच में, मैंने लिखा हुआ विद हाइफन, तो आप उसको कर सकते हैं उससे। नेक्स्ट वर्ड है ननद। ननद भी देखिए NND करके आप लिख सकते हैं और चाहें तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आउटलाइन है, पिछली में देखा था आपने ननद श्रीमती निर्मला। अब श्रीमती में SHR श्री जैसे लिखते हैं और M नीचे हाफ कर देंगे तो श्रीमती हो जाएगा। निर्मला में नॉर्मल जैसे लिखते हैं, नॉर्मल वैसे NRML मैंने दिखाया है, निर्मला। उसके बाद वर्ड है हरास। हरास के स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिएगा, HARASS होते हैं, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजिंग होते हैं ये। और H को हम डबल करके R जोड़ के उसके साथ हरास करेंगे। उसके बाद है डाउरी। डाउरी में आउ लगाना है। उसके बाद है मैट्रिमोनियल। मैट्रिमोनियल की मैंने आउटलाइन पूरी लिखनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है मैट्रिमोनियल की। उसके बाद वर्ड है सरप्राइजिंगली। सरप्राइज, फिर उसके बाद इंग, फिर उसके बाद ली, सरप्राइजिंगली। नेक्स्ट वर्ड है, एक नया वर्ड आया था, आपने देखा होगा, इनकल्पेटिंग। हमारे लिए नया है लेकिन वैसे मीनिंग इसका बहुत आसान है। स्टार्टेड इनकल्पेटिंग, ब्लेमिंग। इनकल्पेटिंग इज ब्लेमिंग, ब्लेमिंग। तो ये आउटलाइन इसकी देख लीजिएगा। उसके बाद है डिसीज्ड। डिसीज की आउटलाइन तो मैंने लिख दी है, मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं इसमें ये बताना चाहता हूं कि इस पे स्पेलिंग आएंगे DECEASED। डिसीज मीन्स जिसकी डेथ हो चुकी हो, और वैसे डिसीज आता है DISEASE। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आउटलाइन है इंस्टिगेटर। इंस्टिगे करके जी को डबल कर देंगे, इंस्टिगेटर। उसके बाद है हैरेसमेंट। हैरेसमेंट। उसके हैरेसमेंट के बाद है भजनपुरा। अब भजन में देखिए BJN किया है मैंने, आप जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि आउटलाइन जैसे लिख देंगे सब ठीक है, लेकिन ट्रांसक्राइब आपको ठीक करना है। भजनपुरा।
भजनपुरा के बाद है इंटरवेंशन। इंटरवेंशन में क्या है, इंटवेंशन, ठीक है, बीच में उसको मिस कर दिया, इंटरवेंशन। इंटरवेंशन वर्ड नहीं होता तो इंटरवेंशन हो गया अपने बाद ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट आया था मैरिटल डिस्कॉर्ड, ठीक है। मैरिटल में मैरिट जैसे लिखते हैं, एम लिख के आर अपवर्ड में मैरिट होता है और एल ऊपर लगा देना, तो मैरिटल डिस्कॉर्ड होता है कि जैसे कोई एग्रीमेंट का खत्म हो जाना, मैरिटल डिस्कॉर्ड। उसके बाद आउटलाइन है एश्योरेंस की। एश्योरेंस होता है वर्ड और दूसरा एनश्योरेंस होता है, वो अलग से लिखा जाता है, उसमें एन आता है, इसमें एन नहीं आएगा। ASSURANCE, एश्योरेंस, एश्योर करना किसी को। नेक्स्ट आउटलाइन है डेंजरस, डेंजर करके एस लगाना, डेंजरस। उसके बाद है सरस्वती। सरस्वती में देखिए SRSVT, सरस्वती, और नीचे डबल टिक लगाइए। और नेक्स्ट है नेबरहुड, नॉर्मल वर्ड है, नेबर करके डी लगाइए। मॉर्चरी, मॉर्चरी जहाँ पर डेड बॉडीज रखी जाती हैं, MRTR, मॉर्चरी। उसके बाद है मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज इकट्ठा कर सकते हैं। उसके बाद है योगेंद्र, योग करके GN को डबल करेंगे, योगेंद्र। बंसल, बंसल हम जानते, BN करके SL, बंसल। उसके बाद है पोस्टमार्टम, तो इसमें पोस्टमार्टम आउटलाइन मैंने दे दी है। नेक्स्ट है कैरोसिन, KRSN। प्रिजर्व्ड, अगर इसको किसी को दिक्कत हो प्रिजर्व और प्रिजर्व्ड में, तो इसको कट कर दे बीच में से, टू शो दैट इट इज प्रिजर्व्ड। अदरवाइज लेंथ जो है कॉन्सोनेंट की वो आधी होती है, ताकि हम उसको ED लगा सकें, प्रिजर्व्ड। नेक्स्ट है स्काल्प, सिर के ऊपर के भाग को स्काल्प बोलते हैं, खोपड़ी को, स्काल्प। उसके बाद है हैंडेड ओवर, हैंडेड ओवर आप इकट्ठा लग सकते हैं, N पूरा लिख के D हाफ करके हैंडेड ओवर। नेक्स्ट इज इन्वेस्टिगेटिंग, इन्वेस्ट करके और गेटिंग, इन्वेस्टिगेटिंग। नेक्स्ट आउटलाइन है फॉरेंसिक, फॉरेंसिक। उसके बाद है पर्टेनिंग, पर्टेन करके इंग लगाना। नेक्स्ट है इनफ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल। और उसके बाद है रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर की काफ़ी लंबी आउटलाइन है, रेक्टेंगुलर। और लास्ट आउटलाइन है पोर्शन की। दैट्स ऑल, थैंक यू।